So, what is AI and what AI can do? I think there is no need of any explanation about the AI. We all are aware about AI very well. We are already in the year 2026. We are not in that 2016 era that we need to explain to somebody that okay, this is AI and AI can do this all things in future. This is the future only, and AI is already doing that. So, we all are aware about the AI, but still many of us are not aware about the actual power and actual potential of AI. So AI can do a lot of things. It is not limited to image generation and video generation, and we all know that very well. So we all are aware about the AI, although the definitions may be different from person to person. Like if you ask from a person having technical background that what is AI, so he will respond something like that AI is basically artificial intelligence, and AI is basically used to mimic the human level intelligence and human level behavior using various LLM models. Generative AI is there, agentic AI is there. He'll respond something like that. But at the same time, on the other hand, if we ask from a person who is having non-technical background that what is AI, maybe he'll respond something like basically something like that AI is a tool which is used to generate some images and videos. He'll respond something like that. So although the definitions may be different from person to person, but we cannot deny with the fact that everyone is aware of AI in today's time. So we all are aware about the AI, but we are still not aware about the actual potential of AI. AI is not limited to any kind of image generation and any kind of video generation. After doing a lot of research about AI and after discussing with the people, with the senior people who are involved in AI and ML is basically machine learning. It's a part of AI as well. So after discussing with the people who are involved in that particular domain and that particular field only, I can truly say that these three categories, or द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दोज थ्री कैटेगरीज, जो जुड़े हुए लोग हैं इन तीन कैटेगरी के अंदर, वो कम्प्लीटली सेफ़ होंगे एआई से. एआई के जनरेशन में आने वाले एटलीस्ट आने वाले 5 से 10 साल तक तो वो सेफ़ ही हैं. तो वो तीन कैटेगरीज कौन सी हैं मैं भी बता देता हूँ आपको. और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा, मैं कोई वीडियो देख के नहीं बता रहा. अपने जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा था इस पर और जो कुछ लोगों से मैंने डिस्कस करा था, तो उसको समराइज़ करके एक तरह से उसका क्रक्स मैं बता देता हूँ कि मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इन तीन कैटेगरी से जुड़े हुए लोग फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे एआई में, और कौन से लोग बिल्कुल सिक्योर नहीं रहेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा. तो तीन कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है वो लोग जिनकी किसी भी एक इंडस्ट्री में मास्टरी है. एक इंडस्ट्री में उनकी पूरी एक्सपर्टीज़ है, उनकी मास्टरी है, वो लोग सिक्योर हैं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन की बात नहीं कर रहा. अब डोमेन क्या है, इंडस्ट्री क्या है? एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ अ डोमेन, iOS डेवलपमेंट इज़ अ डोमेन, IT सेक्टर इज़ एन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर इज़ एन इंडस्ट्री, और आई कैन से दैट रियल एस्टेट इज़ एन इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट एक इंडस्ट्री है. तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री हैं. अब कुछ लोग ये मत समझ लेना कि मुझे एंड्रॉयड अच्छे से आता है या किसी बंदे को iOS अच्छे से आता है तो वो कह ले कि मेरी मास्टरी है इस इंडस्ट्री में. नहीं, इंडस्ट्री में मास्टरी आप तब बोल सकते हो जब पूरा IT सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज हो, एंड्रॉयड भी आता हो, iOS भी आता हो, बैकएंड भी आता हो, फ्रंट एंड भी आता हो, वेबसाइट बनानी भी आती हो, सब कुछ आपको पता है उस इंडस्ट्री के बारे में, आपकी तब बोला जाएगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर मास्टरी है. तो ऐसी किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर आपकी अगर मास्टरी है, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट या कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर अगर आपकी मास्टरी है, भले ही दूसरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, बेसिक पता है नहीं पता, बट अपनी इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज है, तब आप सिक्योर हो आने वाले 10 साल तक तो एटलीस्ट. तो ये पहली कैटेगरी थी. दूसरी कैटेगरी से जुड़े हुए लोग मैं उनको मानूंगा जो जिनको कुछ भी नहीं आता बट सब चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है. मतलब अच्छे से कुछ भी नहीं आता बट सब चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है. यानी कि मास्टरी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है बट सब इंडस्ट्री ये बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर है. इनको IT सेक्टर का फ्लो पता है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, इनको हेल्थ केयर सेक्टर का फ्लो पता है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, इनको रियल एस्टेट स्टॉक मार्केटिंग की भी बेसिक नॉलेज है, और बाकी सब चीज़ों की भी इनको बेसिक नॉलेज है जो कि मेन इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी. तो ये लोग भी सिक्योर हैं काफ़ी हद तक. जिनको इंडस्ट्री में बेसिकली एक्सपर्टीज़ हो ना हो बट सब इंडस्ट्री के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, तो ये लोग सिक्योर हैं. ये दूसरी कैटेगरी थी. पहली कैटेगरी मैंने बताई किसी भी एक इंडस्ट्री में पूरी मास्टरी है, आप सिक्योर हो. दूसरी कैटेगरी मैंने बताई कि किसी इंडस्ट्री के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज नहीं है बट सब इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, तब भी आप सिक्योर हो. तीसरी कैटेगरी जो कि सबसे इजी कैटेगरी है, इसके अंदर जाना इन्वॉल्व होना भी, तो वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वो है AI ML ही सीखना शुरू कर दो. देखो, कहा यह जाता है कि जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो दुश्मन से बचने का एकमात्र तरीका ये भी है कि दुश्मन से जाके हाथ मिला लिया जाए, उसकी टीम में शामिल हो लिया जाए. तो यहाँ पे हमें AI से खतरा है. AI से बचने का तरीका एक ये भी है, AI ML ही सीखना शुरू कर दिया जाए.
तो ये इजी भी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जिन लोगों की स्टार्टिंग है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो भैया और कहीं ध्यान मत दो, AIML ही सीखना शुरू कर दो अच्छे से। आने वाले 10-15 साल तक आप बहुत कुछ कर जाओगे। ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 कैटेगरीज़ मैंने बताई हैं आपको। पहली कैटेगरी वो जिसकी किसी भी एक इंडस्ट्री में पूरी महारत हासिल कर रखी है, एक्सपर्टीज़ है, मास्टरी है। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई सब इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, भले ही किसी इंडस्ट्री के बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो ना हो, सब इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, तब भी आप सिक्योर हो। तीसरी कैटेगरी, अगर आप AI में ही काम करते हो, मशीन लर्निंग में ही काम करते हो, अपने खुद के मॉडल्स बना रहे हो, LLM के बारे में आपको नॉलेज है, रैक के बारे में आपको नॉलेज है, रैक क्या होता है, जनरेटिव AI क्या होता है, एजेंटिक AI क्या है, सब चीज़ें डिटेल में पता है आपको, और आप उस पर और भी सीखते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, तब भी आप सिक्योर हो। और तीसरी कैटेगरी सबसे आसान कैटेगरी है, क्योंकि रादर देन लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन वेरी डेप्थ, इसमें मैं बता रहा था आपको पहली कैटेगरी के बारे में कि अगर आप एक इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। या फिर दूसरी कैटेगरी मैंने बताई कि अगर सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करने बैठोगे बहुत टाइम चला जाएगा। तो सबसे ईजी वे है तीसरी कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाइए, AIML ही सीखना शुरू कर दीजिए अगर दोनों इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करी, और मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में भी आप लाया करते हैं। मेरे हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं 90% लोग तीनों में से किसी एक कैटेगरी में भी नहीं आ रहे होंगे। और जो मैक्सिमम लोग हैं अभी किस तरह के लोग हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इनका क्या है, अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं, ये है कि इनका ये जॉब पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, जितना काम इनको बताया जाता है अपने पर्टिकुलर डोमेन में भी सिर्फ उतना ही काम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डोमेन में ही काम कर रहे हैं और उस डोमेन के अंदर 10 चीज़ें हैं, बट कंपनी इनसे सिर्फ 4 चीज़ें करा रही है, तो इनको 4 ही चीज़ें आती हैं, इनको बाकी की 6 आती ही नहीं। तो इनको अपने डोमेन की ही नॉलेज नहीं तो अपनी इंडस्ट्री की तो पूरी नॉलेज तब होगी, अपनी इंडस्ट्री की ही नॉलेज नहीं तो दूसरी इंडस्ट्री की तो तब होगी। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। तो सॉरी टू से, ऐसे लोगों के लिए बहुत खतरा आने वाला है 5 से 10 साल के अंदर, अनलेस और अनटिल ये इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में शामिल ना हो जाए या फिर AIML ही ना सीखना शुरू कर दे ढंग से। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई, और बाकी आप लोगों के ऊपर है किस तरह से इस चीज़ को लेना है। क्योंकि देखिए, बहुत सा आपने जगह उस पर सुना होगा, काफ़ी टाइम से चलता रहा है कि AI हमारी जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा बायस्ड ओपिनियन रहते हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जॉब हमारी सिक्योर रहेगी, AI के साथ ही करेंगे तो और बेटर होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, AI सच में ही हमारी जॉब खा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, खतरा तो देखो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि AI हमारी जॉब नहीं खा सकता, खा सकता है, और खाना शुरू कर दिया है उसने, और अभी भी स्टिल लर्निंग फेज़ में ही है। AI बहुत इनिशियल फेज़ में है अभी, और अभी से ये सब शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में आपको अंदाज़ा नहीं है AI क्या कुछ नहीं कर सकता, ह्यूमन लेवल की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटर तरीका तो मेरे हिसाब से यही है, AIML थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कर दिया जाए। तो बस यही मैसेज देना था। विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।